Now, the Bhakti movement, like any other movement, had both positive and negative impacts. Unfortunately, the movement's waves decreased the prestige of Hindu society. In India, the negative impacts of the movement are numerous, which we are going to study in detail. Firstly, it gave rise to several other beliefs, such as Tantra, which seemed like a sprout of Bhakti. तो occult practices, जैसे occult practice, तंत्र विद्या जो है वो सामने आई. Secondly, the followers of Kabir called themselves Kabir Pantha instead of non-classification, which further split the Hindu society. अब कबीर के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने कहा था कास्ट और सोसाइटी का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, पर वो अपने आप को कबीर पंथर बोलने लग गए थे. उसके अलावा जो मुस्लिम्स और टर्को अफगान थे, दे डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ राधा कृष्ण और सीतारमन भक्ति कल. सो ये एक रीजन और था. Fourthly, the emergence of tantras and black magic encouraged people to attain desires through mystical paths. अब लोगों को लगता था जो चीज पानी है वो ब्लैक मैजिक से पा सकते हो, which was again wrong. Lastly, the Bhakti movement witnessed its twofold forms, that is developing reforms in Hinduism and bringing harmony among the Hindus. हाँ, ये एक फायदा हुआ था, बट उसके अलावा ये एक नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है जो भक्ति मूवमेंट ने एक्सपीरियंस किए थे. Now explain the negative impact of Bhakti movement on Hindu society in India as mentioned in the passage. How did it impact the prestige of Hindu society? If we talk of the negative impact, they were numerous. First was that it gave rise to occult practices, जिसे तंत्र विद्या भी कहते थे, because of which people thought that they can achieve anything through mystical practices. Second was the followers of Kabir. They called themselves as Kabir Panthar, although there was no classification, which further split the Hindu society. Then the Muslim and the Turko Afghan, they were the ones who were against the Radha Krishna and Sita Ram Bhakti cult. So this led to a lot of problems over that time. What are the concerns raised about the followers of Kabir? How did this self-identification contribute to further division within Hindu society? If we talk of the Kabir followers, they're the ones who said that it is wrong to have distinction in society, but their followers started calling themselves as Kabir Panthas, which again divided the society further. Now, the medieval period in India, medieval period कहाँ से 6 से 16 सेंचुरी तक लास्ट किया था. उन्होंने देखा कि बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज आए थे जिसमें बहुत सारे सोशल इम्प्लीकेशन थे. अब कौन कौन से रिलीजन्स आ गए? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और फिर बाद में इस्लाम भी आए. ये 4 रिलीजन जो है ये पहले इस टाइम पे आए और इनके अपने यूनिक बिलीफ और प्रैक्टिसेस थे. जो रिलीजन था, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ medieval India, shaping the lives of people and influencing the course of events. The Indian subcontinent was a diverse and complex society during this period with a rich mix of custom, faiths, and civilization. By exploring the history of religion in medieval India, we can actually have a deeper understanding of cultural and social dynamics that shape the fascinating period of India. अब क्या क्या चेंजेस आए थे, लेट्स स्टडी. हिंदू रिलीजन जो था उसमें बहुत सारे चेंज आए. क्या चेंज आए इस टाइम पे? नोटेबल चेंज आए हिंदुइज्म में जो कि वर्थ एग्जामिनिंग है. ये जो चेंजेस है इसमें हमने देखा हिंदुइज्म ने नए सेक्टर्स देखे, द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक डोमिनेशन ऑन हिंदू कस्टम प्रैक्टिस. तो ये चेंज आया. क्या आया कि हिंदुइज्म ने बहुत सारे चेंजेस देखे भक्ति मूवमेंट में, और इस्लाम का इम्पैक्ट क्या था. जब मिडीवियल पीरियड थे बहुत सारे नए सेक्टर बन गए हिंदुइज्म के जिसके अपने डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन्स और रिचुअल थे. तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स थे जो लॉर्ड विष्णु को मानते थे, लॉर्ड शिवा को मानते थे और शक्ति दुर्गा माँ को मानते थे, एंड दे हैड देयर ओन प्रैक्टिसेस, राइट. फॉर इंस्टेंस जो लॉर्ड शिवा को मानते थे एम्फेसिस देते थे वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा. जो लॉर्ड विष्णु को मानते थे उसको कहते थे विष्णु जी की अर्चना पूजा कीजिए. इन आप जो शक्ति को मानते थे गॉडेस देवी, गॉडेस दुर्गा को सुप्रीम डिएटी मानते थे. इस तरीके से जो भक्ति मूवमेंट है उसका बहुत इंपैक्ट आया हिंदू रिलीजन में, and it originating in the period the movement of emphasize on the importance of devotion of a personal deity. तो ये एक ना एक मेजर रीजन था कि क्या चेंज आ रहा है. कोई लोग लॉर्ड शिवा की अर्चना करते थे, कोई लॉर्ड कृष्णा की अर्चना करते थे. तो ये सेक्टर्स डिवाइड हो गए थे. जो मीराबाई थी वो मेड़ता में पैदा हुई थी इन कुटकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाली, राजस्थान, इंडिया, अबाउट 1498. उनकी जो फैमिली थी वो लॉर्ड विष्णु को प्राइमरी डीएटी मानती थी, राइट. वो विष्णु और कृष्ण जी को भी, इनके मीराबाई स्पेशली जो थी, एंड देयर फैमिली यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु.
It played a significant role in breaking down the barriers of caste, allowing people from all social backgrounds to engage in religious practices. Additionally, the Bhakti movement contributed to the loosening of rigidities within the caste system. तो भक्ति मूवमेंट ने जो कास्ट सिस्टम था ना रिजिड, उसको खत्म किया. नोटेबली ये जो मूवमेंट था ना, इसने देखा बहुत सारे रिलीजियस फिगर सामने आए, जैसे कबीर दास जी, जैसे गुरु नानक देव जी, उन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंज जो है फेस की. बट इन प्रॉब्लम्स के साथ they had their own way of teaching which attracted a lot of followers towards it. Many of these Islamic sultans, including the Mughals, were known for their tolerance towards other faith. हमने पढ़ा अकबर के बारे में, वो कितना tolerant king था towards other faith. Some even permitted Hindus to freely practice religion. और आपने जब पढ़ा था अकबर के बारे में, आपने देखा था अकबर कभी फोर्सिबली भी किसी प्रिजनर को भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करता था. उसके अलावा वो ग्रांट्स देता था टेम्पल्स बनाने के लिए और हिंदूज को फ्रीली अलाउ करता था कि आप अपना रिलीजन फॉलो करो. नेवरदीलेस रिलीजियस डिस्प्यूट्स अराउज एज सर्टेन किंग्स अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट हिंदू इनटू इस्लाम. पर कुछ राजा ऐसे आए थे जिन्होंने फोर्सिबली हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे. इस्लाम इन्फ्लुएंस ऑल एक्सटेंडेड टू द रेल्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. वो आपको आर्ट आर्किटेक्चर में भी दिखता है, जिसकी वजह से एक इनडेलिबल मार्क है हिंदू रिलीजन के ऊपर, राइट. Islamic features के अंदर they were incorporated into various forms of Hindu art, creating a unique fusion of styles. Conversely, numerous Hindu temples were either demolished or transformed into Islamic structures, reflecting the impact of Islamic control on the religious landscape of medieval Yemen. तो जो rigid rulers थे जिन्होंने हिंदू रिलीजन को सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो इतने rigid थे कि उन्होंने मंदिर हटा के वहाँ पे अपने सेंटर्स बना दिए. Now Islam, this was about Hindu religion. Now what about the Islam religion in medieval India? उस टाइम सूफिज्म आया था, जो कि एक नया चीज था जिसमें फॉर्मली और लेगलिज्म ऑफ ट्रेडिशनल इस्लाम को फॉलो किया गया था. सूफी जो थे, they engage in spiritual exercises and delve deeper into the teaching of Islam, aiming to establish a profound connection with the divine. Central to Sufism is a pursuit of mystical bond with God, emphasizing personal experience of the divine. To spread their teaching, Sufis they utilize poetry, music and dance within practitioner being referred to as Sufis dervishes. तो ये जो है इन्होंने कव्वाली का यूज किया था, जिससे लोग जो है कनेक्ट करते थे अपने आप को भगवान के साथ. 11th सेंचुरी के अंदर सूफिज्म ने बहुत पॉपुलैरिटी पाली इंडिया में, कैप्टिवेटिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल. द रेवर्ड पीर बाबा सेंट्स, आल्सो नोन एज सूफी सेंट, रोज टू प्रोमिनेंस, लीविंग एन इंडेलिबल इम्पैक्ट on the society through their teachings. तो influential सूफी सेंट जो से थे मोहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया एंड बाबा फरीद जो थे, वो सूफिज्म को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. जो इनके एफर्ट से इट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग द सूफी टीचिंग्स थ्रू आउट द एरिया. सूफी फिलोसफी जो थी वो एम्फोसिस देती थी प्यार पर, कंपैशन पर, टॉलरेंस पर, गाइडिंग द एक्शंस एंड बिलीव्स ऑफ फॉलोअर्स. तो ये लोग भी बहुत ज्यादा कंपैशन और लव के ऊपर फोकस करते थे. ये जो सूफीज थे ये कहते थे कि कोई सोसाइटल डिविजन ना हो बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, और ये इक्वालिटी पर बहुत फोकस करते थे. जो सूफिज्म था उस समय पर, इसने हेल्प किया था सोशल कोहेजन, प्रमोटिंग यूनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप, और हेल्प किया था कि दूसरे रिलीजन को आप टॉलरेट कर पाए, एंड इट एक्चुअली हेल्प इन कम्युनल पीस इन मिडिवल इंडिया. सूफिज्म का एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था इस्लामिक सोसाइटी पर मिडिवल पीरियड के टाइम, बिकॉज जो खनज थे या मॉनेस्ट्री थे वो एस्टैब्लिश हुई थी सूफी सेंट्स द्वारा, जहाँ पे स्पिरिचुअल और कम्युनल एक्टिविटीज होती थी. इस टाइम पर जो खनज थे दे इवॉल्व्ड एज इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट यूज्ड टू गिव एसेंशियल सर्विसेज टू द पॉपुलेस. यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था उसकी सर्विस में, और इससे बेसिकली पूरी कम्युनिटी का फायदा हो रहा था. जो सूफी सेंट्स थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन फॉस्टरिंग हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. और ये जो क्या करते, इनका काम क्या था, ये प्रमोट करते थे पीस एंड यूनिटी विद इन द सोसाइटी. तो ये लोग जो थे उस समय भेदभाव ना करके पीस और यूनिटी को प्रमोट कर रहे थे. ये सारे सेंट्स का नाम है शेख बहुद्दीन जकरिया, जो कि शोहवादरी सिलसिला से थे. हमने कहा था ना कि हमने बहुत सारे ऑर्डर्स थे सूफी सेंट्स में, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने. तो ऐसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो चिश्ती सिलसिला से थे, बाबा फरीद चिश्ती सिलसिला थे, गेसुदराज चिश्ती सिलसिला से, बहाउद्दीन नक्शबंदी जो थे नक्शबंदी सिलसिला से थे, शेख अब्दुल कदर जिलानी जो थे कदरिया सिलसिला से थे, चिरागवान दिल्ली वाज फ्रॉम चिश्ती सिलसिला. तो देयर वर टोटल 16 सूफी सेक्टर्स, और देन दे वर द ones who were following it. Then was a Buddhist religion. हमने पढ़ा बुद्धिस्ट रिलीजन ने बहुत ज्यादा ना एक्सपेंशन देखा था, बट उस समय मिडिवल पीरियड में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई. सो इनका रिसर्जेंस हुआ. कहाँ पे रिसर्जेंस हुआ? इसको एड किया प्रो बुद्धिस्ट पाला डायनेस्टी ने, जो उस समय ईस्टर्न इंडिया को रूल कर रही थी, राइट.
एंड द पालर्स जो है उन्होंने सपोर्ट किया कि बुद्धिज्म का फिर से मतलब रीस्टैब्लिशमेंट हो। कैसे करा, उन्होंने फंड किया बहुत सारे बुद्धिस्ट कॉलेज को और मोनेस्ट्रीज को उस समय पे। दे ऑल्सो प्रमोटेड द ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इनटू संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू सेक्ट्स इनटू द वज्रयाना इमर्ज कंट्रीब्यूटिंग द रेनेसां ऑफ बुद्धिज्म। तो ये नए सेक्टर्स आए और इन्होंने बुद्धिज्म को फिर से इनकरेज किया। जो वज्राना सेक्ट था इसने पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं पाई सिर्फ, बट तिब्बत और हिमालयस में भी बहुत फेमस हुआ। इसकी जो रिसर्जन थी, एक्सपेंशन थी बुद्धिज्म का, इट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड वेयर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटी बिकेम द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज में बहुत ज्यादा नॉलेज इंपार्ट होती थी और इन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, स्टूडेंट्स आते थे पूरे कंट्री से और पूरी जगह से, राइट। बुद्धिज्म प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। In addition to academic pursuit, Buddhist institutions also provided social amenities such as healthcare and education to the general public. तो आपने देखा कि बुद्धिज्म का भी मेजर रोल था हैप्पीनेस और वहाँ की सिविक एम्यूनिटी, सोशल एम्यूनिटी बढ़ाने का। देन इज अ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन उस समय पहले बहुत प्रेवलेंट था। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। अब चैलेंजेस क्या फेस किए उन्होंने, उस समय क्या था, जैन रिलीजन जो है उसने ऐसे चैलेंजेस फेस किए बिकॉज उस समय जो है गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। अब जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, स्टिल इसने अपने आप को परसिस्ट किया सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में। जो मिडीवल पीरियड था उसने बहुत सारे इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए, जैसे उस समय इस्लाम का स्प्रेड हुआ और डाउनफॉल हुआ विजयनगर एम्पायर का। तो ये एक मेजर रीजन था, जो एक मेजर प्रॉब्लम था उस समय जैनिज्म ने जो वहां पे फेस किया। डिस्पाइट दीज एडवर्सिटी, जैनिज्म remained a flourishing religion in medieval India, particularly in 10th and 11th centuries. Western and Southern India witnessed a renaissance in Jainism. तो 10 और 11 सेंचुरी में फिर से एक रेनेसा आया। ये किसकी वजह से आया, बिकॉज उस समय वहां पे राइज ऑफ पावर ऑफ चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा किंगडम्स हु वर स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स ऑफ जैनिज्म। तो दो किंगडम थे, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दे आर वेरी मच। तो उस समय जैनिज्म बहुत डिक्लाइन हो रहा था, बट चालुक्य किंगडम एंड राष्ट्रकूटा किंगडम, इन लोगों ने जैनिज्म को बहुत इनकरेज किया बिकॉज ये वहां उनके बहुत बड़े भक्त थे, उनको फॉलो करते थे। तो ये जैनिज्म को हेल्प कर उन्होंने रिस्टोर करने में। ये जो किंगडम्स थे दे उन्होंने सिर्फ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जैन स्कॉलर्स को, बट उन्होंने बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी बनवाए। जैन टेम्पल्स बनवाने के अलावा तो आपको देखना एक सेक्ट हुआ था दिगंबरा जैन सेक्टर का। सो जितने भी चैलेंजेस जैनिज्म ने फेस किए, जैनिज्म फिर से वापस से सर्वाइव किया मिडीवल इंडिया में। तो हमने देखा बुद्धिज्म ने कैसे सर्वाइव किया, जैनिज्म ने कैसे सर्वाइव किया, इस्लाम कैसे आया और भक्ति मूवमेंट कैसे आया। रिलीजन एंड फिलोसफी इन मिडीवल इंडिया, तो जो मिस्टिक्स थे ना, जो मिस्टिक्स थे वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इन द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेजर रिलीजियस मूवमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन शेप हुआ। देयर प्रोफाउंड इनसाइट्स एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पेव्ड द वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीस इन्फ्लुएंशियल बिलीफ सिस्टम। उनकी वजह से बिलीफ सिस्टम बने लोगों के, और उनके जो वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन थे बियॉन्ड द रेलम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग द रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड आइडियाज। तो उन्होंने स्पिरिचुअली तो लोगों को कनेक्ट किया, बट रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स और आइडियाज बनाए, जो उनकी टीचिंग्स द्वारा, उनकी राइटिंग्स द्वारा उन्होंने ऑफर किया नए पर्सपेक्टिव्स और इंटरप्रिटेशन को, इनरेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल एंड गाइड द फेथफुल इन द स्पिरिचुअल जर्नी। किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए वो उन्होंने सिखाया। इनमें बहुत सारे लोग आए, जैसे शंकराचार्य आए। उनकी फिलोसफी जो थी, इट वाज द फाउंडेशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू फिलोसफिकल आइडियाज। इनके जो आइडियाज थे, इनकी जो बेसिकली इनके जो आइडियाज थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनके नोबल कॉन्सेप्ट से पर्सपेक्टिव थे दैट चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम एंड एक्सपैंडिंग द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। उसके बाद रामानुजाचार्य जो आए थे, वो जो थे उन्होंने मोनिज्म को जो है मॉडिफाई किया। उनका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन था बिटवीन द अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण एंड द मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो सुप्रीम रियलिटी है, चाहे वो मैटर करता है सोल को एंड उसके एट्रीब्यूट्स को भी मैटर करता है। फिर आए आपके श्रीकंठाचार्य, जो कि हिंदू थ्योरी को ही सपोर्ट करते थे। उन्होंने शिव जी की उपासना करते थे। ही पोजेस शक्ति टू द हाईएस्ट पोजीशन विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण। दिस फिलॉसफी emphasized the divine union of Shiva and Shakti, highlighting their inseparable nature and their embodiment in the ultimate reality. According to this belief, Shiv ji जो है, it is not confined to a single dimension but exists simultaneously in the multiple dimension. This understanding acknowledges the omnipresence of Shiv and the ability to transcend physical boundaries. फिर आए माधवाचार्य। माधवाचार्य जो फिलोसफी थी, in contrast to शंकराचार्य,
non-dualism and monism, embraced a literal interpretation of dualism, rejecting the concept of illusion. उन्होंने माया का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि he argued that the world is like a diverse and tangible reality. उनकी जो philosophy थी emphasized on the distinct existence of the individual soul and material world, highlighting the inherent duality between the creation. ये जो perspective था इसने prevailing notion को challenge किया, emphasize किया importance of recognizing individuality and diversity within the fabric of existence. तो individual को importance दिया, उनकी dignity को बढ़ाया, जैसे बसवन्ना ने दिया था. The religious landscape of medieval India was intricate and constantly evolving. A multitude of religions and sects coexisted and interacted with each other, shaping each other's belief and practices. Hinduism underwent significant transformation during this period. Buddhism declined in popularity. Sikhism and Islam emerged as two new religions, and they were introduced to India in this time. Now, religion had a profound impact on various aspects of society, including social structure, political system, economic practices, as well as artistic and educational tradition. Even today, the legacy of medieval religion can still be felt not only in India but also in other parts of the world. अब हम पढ़ेंगे एक एक मूवमेंट के बारे में. पहले हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे रहा और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स क्या था. जो सूफी मूवमेंट था इसका बहुत लास्टिंग इफेक्ट्स था इंडियन सोसाइटी में. उसने आपके कल्चर को, आर्ट को, म्यूजिक को, रिलीजियस प्रैक्टिस को बहुत इफेक्ट किया. रिलीजियसली क्या इम्पैक्ट है, सूफिज्म ने ना एम्फेसाइज किया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और इन्होंने कहा कि आपका डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन हो सकता है डिवाइन के साथ. इसकी वजह से जो है सूफी सेंट्स ने प्रमोट किया टॉलरेंस को एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन बिलीफ. सूफी श्राइन्स आर विजिटेड बाय पीपल ऑफ वेरियस फेथ सीकिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस. तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि मुस्लिम्स ही जाते हैं सूफी सेंट्स की दरगाहों पे विजिट करने. इट इज नॉट लाइक दिस. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन गो एंड विजिट देम. कल्चरल इंटीग्रेशन में बहुत काम आए बिकॉज ये जो सूफी म्यूजिक और पोइट्री थी ना, ये इनके एक पार्ट का, इनके कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट था. उस समय कव्वाली इन्होंने एक डिवोशनल म्यूजिक से एसोसिएट किया. जो कव्वाली थी इट वाज एसोसिएटेड विद सूफिज्म. इट वाज वेरी एप्रिशिएटेड बाय पीपल एंड इन्फ्लुएंस द म्यूजिक ट्रेडिशन इन इंडिया एंड इवन नाउ पीपल रियली लव दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक. राइट, सूफी पोइट्री थी जिसके अंदर काम थे रूमी के, हाफिज के, जिन्होंने इनडेलिबल मार्क छोड़ा इंडियन लिटरेचर और कल्चर के ऊपर. फिर इसकी वजह से सूफिज्म की वजह से बहुत प्यार और पीस फैला बिकॉज वो लोग जो थे वो लव, कंपैशन और पीस को बहुत प्रमोट करते थे. सूफी सेंट्स और उनकी टीचिंग्स ने बहुत इंस्पायर किया कि लोग यूनाइटेड रहे, ब्रदरहुड रहे लोगों के अंदर जो उनके फॉलोअर्स हैं, और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो उनकी सोशल फैब्रिक में. तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियनिज्म और चैरिटेबल एक्टिविटीज बहुत फोकस किया गया. दरगाह जो थे दैट सर्व एज सेंटर्स फॉर सोशल वेलफेयर. दरगाह में इट वाज बेसिकली ना इट सर्व्ड एज सेंटर फॉर सोशल वेलफेयर और इसके अंदर खाना, शेल्टर, मेडिकल सिस्टम दी जाती थी जो नीडी लोग होते थे. तो सूफी सेंट्स आर रिमेंबर्ड फॉर देयर एम्फेसिस ऑन सर्विस टू ह्यूमैनिटी. अगर हम बात करें उस मिडीवल पीरियड में सूफी सेंट्स जो थे उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया. Then is the artistic expression. The Sufi movements are significantly influenced various forms of artistic expression, including dance, literature, and visual art. Sufi dances such as the whirling dervishes reflects the spiritual ecstasy and devotion. This mystical theme of Sufi poetry have inspired the artists and writers throughout the history. Now, what was the impact on religion? Religion was also impacted because local customs उन्होंने adapt किए, local tradition adapt किए, जिसकी वजह से जो है रिच टेपेस्ट्री ऑफ रिलीजियस कल्चर्स हुए इंडिया में. देन रेजिस्टेंस टू ऑर्थोडॉक्सी. वहां पर उस समय पर सूफिज्म ने एक एम्फेसिस दिया कि डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है अगर आप किसी के दूसरे के रिलीजन को भी टॉलरेट करें. और उन्होंने इस चीज को अलाउ किया जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर को इग्नोर किया, मना किया. सूफी सेंट्स जो हैं दे हैव बीन नोन टू चैलेंज डॉगमास एंड प्रमोट अ मोर फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेथ. फिर pilgrimage and unity. Sufi shrines have been centers of pilgrimage. यहाँ पे लोग तीर्थ यात्री जाते हैं जिससे बहुत सारे रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग वहाँ जाते हैं. ये जो एक्ट है ना इन श्राइन्स को दरगाह पे माथा टेकने का, इससे एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रमोट होती है और ये स्पिरिचुअल हेरिटेज को भी फॉस्टर करता है और कम्युनल हार्मनी को भी फॉस्टर करता है.
ओवरऑल जो सूफी मूवमेंट था उसने बेसिकली हेल्प किया था स्पिरिचुअल लैंडस्केप को बढ़ाने का, प्यार, इंक्लूसिविटी, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। तो सूफी मूवमेंट ने बहुत काम किया। देन केम द भक्ति मूवमेंट, जो हमने पढ़ा भक्ति मूवमेंट का रिलीजियसली क्या इम्पैक्ट था। उस समय पर जो दरार थी ना हिंदू मुस्लिम्स की, उसको इन्होंने कैटलाइज किया कि ये खत्म हो जाए और ये लोग साथ में रहे, और जो बेसलेस सुपरस्टिशंस है वो खत्म हो जाए जो उस समय उनके बिलीव्स को प्लेग करके रखे होते हैं। ये जो मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट, इसने क्या किया, इसने फॉस्टर किया कि सब सेंस ऑफ यूनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द टू रिलीजन्स, एंड इट लेड टू अ रिडक्शन ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड रिकग्निशन ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रैक्टिस। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये जो आप फालतू के रिचुअल्स फॉलो करते हो ये बंद करके आप इंसान के लिए टॉलरेंट रहे, उसके रिलीजियस के लिए टॉलरेंट है, और प्यार करें, एक दूसरे को समझें। तो एडिशनली जो भक्ति मूवमेंट था उसने ट्रेडिशनल अथॉरिटी चैलेंज की ब्राह्मण्स की, क्योंकि उस समय क्या था, जो 4 हमारे सेक्टर से ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और उस समय भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ तो इसमें सिखिज्म भी इवॉल्व हुआ एक नया रिलीजन के बाद। फर्दरमोर फिर रेबर्ड गुरु ग्रंथ साहिब, द होलीस्ट बुक ऑफ सिक्स, नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट द टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स but also emphasize the importance of tolerance and acceptance among different societal groups as it advocated by the proponents of the movement। तो फिर एक नया रिलीजन हमने देखा था कि एक नया रिलीजन वहाँ पे आया था, उसको कहते थे सिखिज्म। अब सिखिज्म की जो सारी टीचिंग्स हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसको बोला जाता है सरब साची बानी, जिसमें सिर्फ जो नॉलेज है, जो हिम्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो जो सारे हैं वो सिर्फ उनके गुरु के नहीं है, बट इट इज फ्रॉम द भक्ति सेंट्स एज वेल। नाउ द सोशल एंड द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, भक्ति मूवमेंट ने बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला सोसाइटी पर, क्योंकि कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया, कास्ट सिस्टम को उठाने की कोशिश की कि ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने हैप्पीली ना लोगों को एक साथ रिजिड हिराकी जो थी ना, जिससे डिस्क्रिमिनेशन था, उसको हटाया। तो लोअर कास्ट के लोग वो बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने भक्ति मूवमेंट को फॉलो किया। और जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने हेल्प किया सोशल इक्वालिटी फॉलो करने के लिए। इसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको लगा कि उनको भी भगवान के दरगाह में इक्वल दर्जा मिलेगा, जो पहले उनको नहीं लगता था, which actually ना had break down those barriers over there, right? तो भक्ति मूवमेंट था, उसके बाद उसका इंडियन कल्चर पर बहुत इम्पैक्ट आया। उस समय पर शेयर्ड किचन्स और मील स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड और कल्चर कुड हैव फूड टुगेदर, जिसकी वजह से सोशल बैरियर्स खत्म हुए और लोगों को लगा कि हम सब एक हैं। फिर उसके बाद इंडियन लिटरेचर जो था उसमें प्रमोशन था मिक्स आर्ट विच रिफ्लेक्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। भक्ति वुमेन में विमेन की जो पोजीशन थी उस पर भी बहुत काम हुआ, बिकॉज विमेन जो थी एक्टिव रोल प्ले करती थी मूवमेंट में, और मेनी फीमेल सेंट्स emerged ड्यूरिंग दिस टाइम। ये एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी व्हिच हैड बीन लार्जली कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फीयर। तो पहले जो है वो सिर्फ घर के कामकाज में रहती थी, बट भक्ति मूवमेंट में कुछ फीमेल भक्ति सेंट्स भी आए, जिससे विमेन की जो पोजीशन थी सोसाइटी में बढ़ी। भक्ति मूवमेंट अगर हम बात करें, इसमें एन ओवरऑल इनरिचमेंट हुआ स्टेटस ऑफ लोअर क्लास, इट हेल्प टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स that had kept them marginalized so long and gave them a sense of dignity and self-respect। इससे हिंदू मुस्लिम्स के रिलीजियस जो इनके जो डिफरेंसेस है वो इनके सारे क्लब हुए। तो अगर हम बात करें फिर से, अगर हम रिवाइज करें कि भक्ति मूवमेंट ने क्या करा, पॉजिटिव चेंजेस लेके आया कैसे, क्योंकि इसने चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को, सोशल इक्वालिटी को इसने प्रमोट किया, इंडियन कल्चर को जो है आगे लेके गया, विमेन को एक अच्छा रोल दिया सोसाइटी में। इसके जो इम्पैक्ट थे वो लॉन्ग लास्टिंग थे, फार रीचिंग थे, और इंडियन सोसाइटी को काफी फायदा हुआ। भक्ति मूवमेंट का पॉलिटिकल सेक्टर पे भी बहुत इम्पैक्ट आया, बिकॉज लोगों के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। ये जो सोशल रिलीजियस भक्ति मूवमेंट था इसने एक शिफ्ट किया टुवर्ड्स मोर लिबरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया। एंड देन लेट्स कम टू द मॉरल इम्पैक्ट। इसका जो मॉरल इम्पैक्ट था उसकी वजह से लोग जेन्युइनली कमिटेड थे, डिलिजेंट थे, एफर्ट डालते थे, इंटीग्रल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे। ये जो मूवमेंट था इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि आप अपनी जीवन शैली को ऑनेस्टली और डेडिकेटेड मैनर में जिएं और अनएथिकल मीन्स को ना फॉलो करें। एडिशनली जो मूवमेंट था इट वाज अ कैटलिस्ट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू एक्टिवली एंगेज इन सोशल सर्विस एंड बी एम्पैथेटिक फॉर ईच अदर, राइट? So it encouraged them to take proactive steps towards this societal issue and working together towards a more compassionate and inclusive society. Furthermore, the movement imparts valuable lesson on the importance of patience। इसमें patience पे, self control पे काम किया। जो लोग इतना ज्यादा दूसरे से भड़के रहते थे, एंग्री रहते थे, बहुत जेलस फील करते थे, तो उन्होंने कहा ये सब नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा रिमोट कंट्रोल, हमारी जो हमारी फीलिंग्स है हमारे हाथ में चाहिए, एंड वी शुड नॉट
फील ओवर इमोशनल एंड हमें अपना एक काम कंपोजन मेंटेन करना चाहिए किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। ये जो एम्फेसिस था, जिसके इन एम्फेसिस की वजह से पर्सनल ग्रोथ हुआ, इसने फॉस्टर किया एक हार्मोनियस सोसाइटी विद इन द कम्युनिटी, राइट। सो दिस वाज अ रोल इफ वी टॉक ऑफ द मॉरल इम्पैक्ट। नाउ लेट्स कम टू द फॉस्टरिंग रिलीजियस रीजनल लैंग्वेज। उस समय पर जब ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो मेन लैंग्वेजेस कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी, पर्शियन होती थी, अरेबिक होती थी। पर भक्ति मूवमेंट ने कहा कि इससे लोग जो है कनेक्ट नहीं होते, बिकॉज लोग इसे समझ ही नहीं पाते, तो उस भाषा में ही बात करें जो लोग समझ पाए। तो इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। So in contrast to prevalent use of Persian, Arabic and Sanskrit by scholars and intellectuals, Bhakti Saints chose to communicate their teaching in local language. ये जो डिसीजन था ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ये अच्छा इसलिए था क्योंकि लोग उनको समझ पा रहे थे, सिर्फ वो बुक्स के लिए नॉलेज नहीं थी, उनको लोग समझ पाते, कोरिलेट कर पाते, फॉलो कर पाते। जब कबीर दास जी ने बहुत सारी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया, तो ऐसे सूरदास जी ने ब्रिज लैंग्वेज को यूज किया, गोस्वामी जी ने अवधी लैंग्वेज को यूज किया। ये जो लिंग्विस्टिक चेंजेस आए ना, इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुआ लैंग्वेज का ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। नाउ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे। पहला क्या था? बहुत सारे सेवरल बिलीफ्स आगे तंत्र का, लोगों को लगा कि तंत्र जो होता है, तंत्र मतलब ऑकल्ट प्रैक्टिस, लिबरल आर्ट, उससे ये मिस्टेक ना, ब्लैक मैजिक से जो भी चाहे अचीव करना वो कर सकते हैं। ये पहला फ्लॉ था। दूसरा फ्लॉ क्या था? कबीर जी ने कहा कि कोई भी सेक्टर में डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए। पर जो कबीर जी के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को कबीर पंथर कहने लगे, जिसकी वजह से फिर एक और सोसाइटी में डिस्टिंक्शन हुआ। जो मुस्लिम्स है ना, वो दे वर अगेंस्ट, दे डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ राधा कृष्ण सीतारमन भक्ति मूवमेंट, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम है। भक्ति मूवमेंट को के दोनों थे, एक फायदा भी था, एक नुकसान भी था। इट हैड ना, सो भक्ति मूवमेंट ने मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ किया, और 7th और 8th सेंचुरी में इनके इसने स्प्रेड किया मैसेज ऑफ लव, डिवोशन एंड भक्ति to the people. Additionally, ये movement था, it helped to eradicate the superstitious belief that exists in society regarding lower caste and inequality. Although the movement was only partially successful in achieving its objective, it bring about some changes in ideology of Hinduism and fostered harmony between Muslims and Hindu. It also led to a new religion, Sikhism, which further divided the Hindu society. So both were the factors, which contribute the negative and the positive impact of Bhakti movement. So this was all about the chapter. Let's come to the questions. During which centuries did the medieval period in India take place? It was 6th to 16th century. Which dynasty supported the revival and expansion of Buddhism? It was the Pala dynasty. What were the central theme of Bhakti movement? Intellectual debates of theology. Then who was the one who followed Vaishnavite faith? Was Mirabai. Then which Sufi saint belonged to the Chishti Silsila? It was Khwaja Qutbuddin Bhaktiya Kaki. Then who was the influential Jain saint during the medieval period? Was Lord Mahavira. The emergence of Hinduism, Buddhism and Jainism were the prominent during the medieval period in India. The Bhakti movement emphasized devotion to God, Bhagwan ki bhakti ke liye focus kiya. Sufism had a profound impact on Islamic society in medieval India, promoting love, compassion and tolerance. The Pala dynasty in eastern India supported the growth of Buddhism, contributing to the revival of Buddhism. Despite facing challenges, Jainism experienced a revival in the 10th and 11th century, supported by the Chalukya and the Chalukya kingdom, right? Mystics like Shankaracharya, Ramacharya, Srikantacharya and Madhavacharya significantly influenced the philosophical landscape of Dash India, of evolving India. Now, the true false. The Pala dynasty ruled over, क्या पाला डायनेस्टी ने रूल किया था 8th to 12th century? Yes. The Bhakti movement challenged the authority of Brahmins? Yes. The Vajrayana sect of Buddhism gained popularity in southern India during the medieval period? Yes. Right. The Khanaks established a Sufi movement served as centers for economic activities in the medieval period. जो खनक थे उन्होंने इसमें काम किया? No. Then the Chalukya and the Rashtrakuta kingdom, जो जैनिज्म के हमने यहाँ पे पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक, तो दो किंगडम थे, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा। दे वर द पैट्रिज्म और जैनिज्म, इन्होंने हेल्प किया था जैनिज्म को सर्वाइव करने में, रिवाइव करने में। यस। सिखिज्म emerged as a new religion during the medieval period under the influence of Kabir. True. Now, let's come to the question answer. Describe the changes that occurred within Hinduism during the medieval period, including the emergence of new sectors and impact of Bhakti movement. During the Bhakti movement, there were a lot of changes in the Hinduism, because a lot of new sectors of Hinduism evolved, wherein people were following different deities and they considered it as supreme god. There were people who were following Lord Vishnu, there were people who were following Lord Krishna, there were people who were following Lord Shiva, there were people who were following goddess Durga. So there were different sects who emerged during that period of time. Explain the significance of Bhakti movement challenging the caste system and promoting social equality in medieval India.
Bhakti movement played a vital role in actually bridging the gap between Hindus and Muslims and eradicating the caste system biases, because it actually promoted equality, love, and compassion for each other. Describe the role of Sufism in fostering social cohesion and promoting unity among the diverse group of medieval India. Sufism also evolved as a new religion wherein people were basically having strong faith in love and empathy for others rather than believing in the caste distinction. So they were against the caste distinction, and they were promoting love, empathy, and compassion for each other through their qawwalis and the poetic way which connected them to God. Right? Explore the challenges faced by Jainism during the medieval period and how it managed to persist and thrive in the certain region. Jainism played a major role in the earlier periods, but in medieval period it was actually subdued by Islam rulers, because the rise of Islam rulers, there was decline of Gupta Empire, then there was rise of Islam rulers, because of it they had faced a lot of challenges. But with the rise, with the help of Chalukya and Rashtrakuta kingdom, they were able to revive their roots in India during the medieval period. Now, how did mystics like Shankaracharya, Ramanuja, Srikantarya, and Madhavacharya contribute to the philosophical landscape of medieval India? All the mystics were the ones who were significantly influenced the physical landscape of modern India, because they were the ones who were actually creating social reforms, helping people to have a new look toward the civilization. Then evaluate the impact of Bhakti movement on the regional language and the development of cultural identity during medieval times. Bhakti movement was actually predominantly, really a time when people started using the local language. So Bhakti movement was not very instrumental in using the Arabic, Persian, and Sanskrit language. They were the ones, the preachers of the Bhakti movement, the saints of the Bhakti movement were using the local language, which was easy to comprehend and understand by the common masses, and they become their followers also. Now let's come to the next question. Analyze the political impact of Bhakti movement in medieval time, considering the influence of rulers in adoption of liberal religious practice. Bhakti movement had a great impact on the political impact, because during that the caste system was eradicated, the rigid hierarchy of discrimination was challenged for lowercase. So lowercase were the ones who were very happy with the system, because they were considered equal in the society, and they thought that they are equal in the eyes of God. So there were a lot of followers along with this to promote to promote unity. Standard kitchens and meals were followed, so the societal barriers were obliterated and people were considered equal. Plus there was a lot of emphasis on the role of women also, and they saw the upsurge of women saints during Bhakti movement, which actually helped people to follow Bhakti movement, and they started for having respect and love for each other. Examine the moral impact of Bhakti movement, emphasizing the promotion on commitment, diligence, integrity, and patience. Bhakti movement had a great role in the moral impact of people, because they wanted to attain, they actually focused on individual to attain their way through genuine commitment, diligent effort, and integrity. They thought that it was bad to use the unethical means to have anything as a possession. So they were actually focusing on the ideas like commitment, diligence, effort, and integrity. Plus both the men and women were given the equal status in the society, because of which they were actually saying that they were be empathetic towards each other. Plus all the societal barriers were actually taken off. People were told that they need to be very patient, self-control, and they should not lose their self-composure in the challenging situation. So this basically helped in maintaining the harmonious balance in that society. Now explore the effects of Bhakti movement and status of women in medieval period, considering their active participation in the role of Bhakti movement. Women were considered equal by the Bhakti leaders, and this helped in bringing a lot of change during the Bhakti movement. Now the Bhakti movement helped in the placement, the notable importance in the life of women, because women played an active role in the movement, and many female saints emerged during this time. So there was significant departure from traditional role of women who was actually made for the domestic chores. Now she was allowed to participate equally. She had a voice. They were Bhakti saints who rose during this period. Now let's come to the next question. The next question is, discuss the role of Bhakti movement in breaking down societal barriers and promoting a sense of community through shared kitchens and meals. So Bhakti movement had a great impact on the society, because they were against also the caste, culture, color, creed, and discriminations. So they wanted to promote a message of brotherhood and brotherhood
and love for each other by promoting promoting a sense of community through shared kitchen. So langar was prevalent, and people used to have food together irrespective of their caste, color, creed, or society. Then evaluate the positive and negative impacts of Bhakti movement on Hindu society, considering the effects on Hindu-Muslim relation, the decline of caste system, and emergence of new belief. If we talk of the positive and the negative factor, the positive factor was first, it spread the message of love, devotion towards people. Then it helped in eradication of the superstitious belief. There was no caste and inequality system ruling in during the Bhakti movement. It helped improve the relation between Hindu and Muslim. There was a rise of new religion called Sikhism. These are the positive impact. If we talk of the negative impact, during the Bhakti movement, there were several beliefs like occult practices, liberal arts, and Tantra Vidya, which seemed like to sprout in during the Bhakti movement, and people thought that tantrics and the black magic was a way which was encouraging people to attain desires through mystical means. Second was the Kabir Panthas, because they started the followers of Kabir started calling them as Kabir Pantha, although they were against equal classification. Thirdly, Muslims, they were against the Sita Ram Bhakti or Radha Krishna cult. So this was the negative impact on the society. Now let's come to the next question. The next question is, analyze the effect of Bhakti movement on the development and promotion of regional languages, emphasizes its role in communication and cultural achievement. Now if we talk of the Bhakti movement, it had a major role in promoting the and fostering the regional language, because all the Bhakti leaders, they were not using Persian, Arabic, and Sanskrit, but they were using the local language, like Surdas used the bridge language, Goswami used Avadi, and Kabir Das ji also used a blend of multiple language, which actually made learning very easy, and people were more attracted to this Bhakti movement. This was all about the question answers. I hope we had good time learning. Happy learning.